मैम लुकिंग इन अ वेरी ग्लैमरस अटायर, व्हाट इज द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग, क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली, क्या रोल प्ले कर रही हैं और हाउ एक्साइटेड यू आर फीलिंग अबाउट द बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज सच? Wow, too many things in one go. So, yes, I'm shooting for a film which is called Daily Hunt. It's a film on a underworld gangster. So, आपको फिर से एक नया पुराना दौर नए तरीके से फिर से फिल्माया जा रहा है, जो आपको बहुत ही आशा करते हैं यू विल लव इट एंड यू बहुत आपका मनोरंजन होने वाला है बिकॉज I am not only playing this glamorous role, glamorous character. I have a lot of shades happening in this character. Like she is a lover, and she finds her love after so many years, and it's a long lost love found back again. And how her journey starts from a small town girl coming to Bombay and getting involved and finding her love back. So इससे ज़्यादा आई थिंक मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर पाऊँगी एंड आई गिवन मोर देन द इंफॉर्मेशन। जहाँ आपको एक बहुत ग्लैमरस रोल देखने को मिल रहा है, कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं, वहीं पे आपको दानिश भट्ट की बहुत इंटेंस एक्टिंग देखने को मिल रही है एंड ही इज़ कमिंग अप इन अ वेरी न्यू अवतार विच आई थिंक नेवर सीन बिफोर. And we are really looking forward because we are working really hard day and night without sleep. We are here shooting, smiling and giving our best shot because बहुत excitement है इस फिल्म में. अक्षिता, डेली हंट जो टाइटल है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक इंग्लिश टाइटल है और इस तरह का प्रोजेक्ट काफ़ी बन चुका है, इसमें कुछ ऐसा यूएसपी अलग है जो आपको नज़र आया? और शूटिंग क्या ने बताई कि कहाँ तक हो चुका है शूटिंग, कब तक रिलीज होने की बात हो रही है? शूटिंग अभी हमारा फर्स्ट शेड्यूल चल रहा है और वी विल बी गेटिंग बैक ऑन द सेकेंड शेड्यूल वेरी सून समवेयर इन सितंबर सिंस वी हैव आवर शेड्यूल प्लान इन सच अ वे एंड देयर इज़ अ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट फील, डिफरेंट वाइब इन एवरी सीन. एज you said that this has been shot prior, the concept, the project, but the climax you will see it's completely brand new. It's not very I would say that a typical traditional Bollywood gangster movie which you see it is somewhere you will see, but you will imagine that the end is going to be that's where the change comes in the climax. So you need to wait and watch for the movie to release, which will be releasing soon somewhere end of this year. Hopefully everything goes well with the pandemic, things become all right, and we should get to see this in the cinemas very soon. Beside you and Danish और स्टार कास्ट के बारे में बताइए, कोई ऐसा जाना जी गैवी जी हैं इसमें. Okay. अपने गैवी जी हैं इसमें और वो he's playing a very major and a big role. It's not that he's the lead, she's the lead. Every character you will see, you will fall in love, and everyone is as important equally as a main lead. So basically इसमें सभी मेन लीड में हैं बिकॉज विदाउट कहते हैं ना कड़ी एक एक दाने से जोड़कर बनती है, तो इसी तरह से अगर एक भी कड़ी निकाल देंगे तो देयर इज़ नो फन इन द स्टोरी. तो एवरीवन इज़ प्लेइंग द बेस्ट रोल एंड द बेस्ट परफॉर्मेंसेस. जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल सी द बेस्ट क्लाइमैक्स एवर. टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उनका हमें बताइए कि किस तरह का कोऑपरेशन मिला अभी तक इस प्रोजेक्ट में उनका? जी, तो संजीव जी हैं हमारे प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड ही इज़ I have worked with many directors, but I would say this person is damn clear, damn sure that what he wants on set. Like, you won't believe in one day in a movie how many scenes are being shot in general. हम लोगों ने आज 7 सीन शूट कर लिए हैं, एक गाना अभी शूट होगा because our director, our team, our technical team is so clear with their mind work. Our cameraman, he knows exactly कि इनका close किस line पे आ रहा है तो वहीं लिया जा रहा है. So there is no much time we are wasting in the इसका हो रहा है close उसका. Everything is so crisp and clear. We shoot and we finish the scenes like that. You won't even realize we finish 3 scenes in one go. जहाँ पे बाकी
अब हर प्रोडक्शन का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, बट दिस वन इज़ लाइक नो वेस्टिंग टाइम, लेट्स जस्ट गेट टू वर्क. इट्स अ 1 day schedule for today as of now. Rest of the schedule starts somewhere in September. So I am sure another schedule is also going to be rocking. और क्या होता है ना, जब तुम जल्दी जल्दी काम करते हो ना, तुम्हारी एनर्जी भी बहुत हाई स्पिरिट पे रहती है, क्योंकि पूरी टीम दिल लगा के काम कर रही है और उनको पता है क्या चाहिए, क्या करना है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टीम आई एवर वर्क टिल नाउ. यू हैव अ ग्लैमरस काइंड ऑफ इमेज. तो पहले जो आपने प्रोजेक्ट्स किया है, बेसिकली व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू इन एक्ट्रेस? किस तरह का रोल प्ले करती हैं या कर रही हैं या करना चाहती हैं बेसिकली? So see, I'm a Kingfisher calendar girl. Okay, so I come from my schooling, as you say, like I come from a modeling background. So I have done all the possible pageants in the country. So when I got into acting, तो मुझे ये था कि I should be doing all the possible characters I can achieve to. So अगर मुझे like recently I've done a film where I've played a role of a leader of a brothel, like I be the prostitute there. So मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि उसमें खेलने में बहुत ज़्यादा है. There are a lot of shades I can go on and on. And now coming back to a bar dancer. So this is also on a very intense, because every bar dancer has a story, backstory, sad story, love story, and then a lot of times like these gangster comes in, bar dance, like this is very typical if you say it the way you said it, but there is lot of layers being there, so you will see that, and this gives me challenge every day, because वो हर रोज़ में एक girl next door करना या just to be glamorous. So in this film I'm not only being glamorous, you will get to see the other side, as I spoke earlier, like the intense side where the girl is like crying for her love, like the true love, or बचपन का प्यार we say it. So and she's found it back. So I enjoy every moment. And basically now these days I'm actually picking up characters where the one is another from each other, so that it doesn't get the reputation कि नहीं she just does glamorous. I wanna come in the bracket of that, okay, she's an overall package. So I'm just trying to do my work, hoping that you guys will love it. Lastly, one was, as you mentioned, you are a calendar girl. I mean, Madhur Bhandarkar ने फिल्म भी बनाई थी Calendar Girls, but it didn't work out. Basically, people have perception that if you are from a modeling background, acting is very difficult for you. तो उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे कि एक्टिंग कितना डिफिकल्ट है फ्रॉम अ मॉडल पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव? कि मॉडलिंग अलग एक फील्ड है, एक्टिंग अलग एक फील्ड है. जी. तो हाउ डिफिकल्ट आर यू फाइंडिंग एक्टिंग? डिफिकल्ट तो नहीं है, आप मुझे देख ही रहे हैं, मतलब 2012 और अभी तक विद गॉड्स ब्लेसिंग वी आर सर्वाइविंग एंड सस्टेनिंग. सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बट काम कोई भी आसान नहीं है. जैसे आपकी पत्रकारिता आसान नहीं है, पूरा दिन आपको भागना पड़ता है, वैसे ही हमें भी भागना पड़ता है. बस ये है कि हमारे रोल्स और ड्यूटीज़ अलग होते हैं, एंड एवरी थिंग इज़ देयर इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ डेडिकेशन, sleepless nights, going out of schedule, but the fun part is when you get the kick, when you are on the set in your outfit with your hair and makeup on, तुम्हें कुछ याद नहीं आता है. जब आपको भी होता है ऐसी कोई न्यूज़ आती है, आपको कुछ नहीं याद है, यू जस्ट गो बिहाइंड द न्यूज़. सो सिमिलरली आसान काम कोई नहीं होता, आपकी दृढ़ता होनी चाहिए वहाँ तक, लक्ष्य तक पहुँचने की. That's what I believe. What's the pipeline besides this project? There is another new web series coming up, which I cannot disclose right now, the channel, but I can give you a little hint of it, that it's going to be another futuristic, like we will be showing the future to you guys. It will be world post pandemic, and then there is another short film, not a web series would be coming up, and that is like another true story, and it's going to be releasing on the great platforms, which I hope you guys will definitely not miss out watching. And good directors, when the time is right, we talk about the another projects, and there is there are more web series. Like right now I'm more focusing on web series, because one, you get to play a lot. Second, there's a wide range, because since after pandemic cinemas are shut down, so you never know what's going to happen. A lot of films are in hold, but the only thing is working right now is web. So my main agenda and focus has always been throughout 1.5 years that I should just focus on the web. So I'm doing that and hoping all your blessings and love are there. Thank you. Okay, so let me tell you something about this project. This is a film based on the gangsters.
सो अर्ली 90s बोल सकते हैं हम सर, 90s राइट. सो उस पे बेस्ड है ये फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म है. सो आई एम प्लेइंग रोल ऑफ नाना इन दिस. एक स्मॉल टाउन लड़का जो बॉम्बे आके कुछ बड़ा करना चाहता है. तो यहाँ पे वो एक गैंगस्टर ग्रुप के साथ ज्वाइन होके काम कर लेता है. बट उसकी सोच जो होती है वो रिप्लेस करना चाहता है उनके बॉस को, उसको मार के, ताकि वो पूरे बॉम्बे पे कब्जा कर ले. ये भी चाहूँगा, यू हैव बीन पार्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स, मतलब ये मैं चाहूँगा कि जब आप सिलेक्शन करते हैं एक्टर, व्हाट इज़ द थिंग यू लुक फॉर इट? It's I look for the characters, I look for the role, how good is the role, how good is the film, कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है. और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ पहले स्क्रिप्ट में वो है कि आपका रोल क्या मैसेज देना चाहता है. सो दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी. मैंने ये भी जानना चाहूँगा कि हैविंग सो गुड लुक्स व्हेन यू आर फॉर नेगेटिव रोल, क्या लगता है कितना आसान या मुश्किल होगा एस्टैब्लिश होना एज एन एक्टर फ्यूचर में? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इजी. इट्स अप टू यू. इफ़ यू आर हार्ड वर्कर तो देन यू नो वन कैन बीट यू. यू कैन वर्क. सो अगर आप घर बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला है नहीं. कोई कितना भी गुड लुकिंग हो, कोई कितना भी कुछ हो. सो यू नीड टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड यू नीड टू वर्क. दैट्स इट. सर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहेंगे कि कितने उत्साहित हैं और जो आपका लीड आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बताइए कि व्हाट वर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ दम? ये जितने भी आर्टिस्ट हैं फिल्म में सब बहुत एकदम परफेक्ट हैं स्टोरी के हिसाब से, और सबको मैंने स्टोरी के कैरेक्टर के हिसाब से ही लिया है. और सबका अपना बहुत ज़बरदस्त रोल है फिल्म के अंदर. किसी का भी कोई ऐसा कि किसी का छोटा रोल है, किसी का खराब रोल है, ऐसा कुछ नहीं ये है. अंडरवर्ल्ड बैकग्राउंड पे खासकर मुंबई अंडरवर्ल्ड पे फिल्में तो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन कामयाब फिल्में बहुत कम ही बनी अगर देखा जाए. राम गोपाल वर्मा एक थे जो ऐसा बनाते थे फिल्म और लोग देखते थे. तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज के टाइम में लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे इस तरह के? अरे इस फिल्म को तो 100% एक्सेप्ट करेंगे, श्योर. इसकी कहानी अलग है एक्चुअली. अंडरवर्ल्ड में क्या होता है, एक गैंग होता है, वो दूसरे गैंग को मारता है, मारने के बाद फिर वो अपने गैंग को चलाता है, फिर उस गैंग में कोई धोखा दे देता है. इस टाइप का हमेशा अंडरवर्ल्ड बनता है. मेरी फिल्म में अंडरवर्ल्ड बिल्कुल अलग मायने रखता है, उसका अलग मीनिंग है अंडरवर्ल्ड का. टॉकिंग अबाउट टुडे शूट, आज के शूट करने बताइए, और शूट का कितना परसेंटेज हो चुका है, कब तक आप लोग रिलीज के लिए प्लान? फिल्म मेरा ऑलमोस्ट मतलब 30% कंप्लीट हो गया है, और अभी ये फिल्म मेरा जनवरी में रिलीज़ हो जाएगा. ओके, एंड बिसाइड्स दैट कोई और प्रोजेक्ट है जो आप करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं, मेरा अभी कुछ रेडी है रिलीज़ के लिए. ओके. वो दिवाली पे रिलीज़ होगा. सर अपने जो इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे जुड़े हैं और क्या करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को? मैं इस फिल्म में संजय के साथ पहले फिल्म कर चुका हूँ मैं, और इस फिल्म में ये पहला म्यूजिक पीस कर रहा हूँ मैं. ये आज शूट हो रहा है, और इसके गाने हम लोग महाबलेश्वर शूट करने जाएंगे आगे के गाने. तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक बेसिकली, किस तरह का म्यूजिक है, किस तरह का? ये म्यूजिक है अपना कौन सी संजय रंगीला में जो उर्मिला मातोंडकर जैसे सोलो कैसे डांस करती है, उस काइंड ऑफ ये म्यूज़िक है. और बहुत अच्छा ये डांस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. कल इनके साथ रिहर्सल किया और आज शूट करेंगे इनका. आपसे कि आप जी. क्या आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं? क्या फ्यूचर में मेरे 2-4 प्रोजेक्ट्स लाइन अप है. मेरी शूटिंग चल रही है, तो मैं अभी नाम तो नहीं ले सकता. वैसे आपको पता ही चल रहा होगा अभी शूट चल रहा है. सो मेरी 3 फिल्में आ रही हैं इस साल. मेरी 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं यशराज के साथ ही, और नेक्स्ट ईयर और एक आ रही है यशराज के साथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी आर डूइंग अ वेब सीरीज ऑल्सो. आई एम डूइंग 2-3 मोर, बट 2-3 बड़ी फिल्में इस साल आपको बहुत ही अमेजिंग फिल्में देखने मिलेंगी मेरी. होपफुली दिवाली पे 2 आएंगी, और अगले साल ईद पे और एक. And what about your co-star sitting beside you? She is the beautiful woman sitting besides me, because I know her from last 15 days honestly, because we are doing a web series together. So मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, तो संजय जी was searching for a girl, तो मैंने इनको रिकमेंड किया. मैंने बोला संजय जी, I found this artist very much interesting, और इनका काम अच्छा है, आप एक बार देख लीजिए. तो उन्होंने आई थिंक कल ही मिले थे, तो उन्हें रिहर्सल किया, उन्होंने फाइनल किया, तो आज हम शूट कर रहे हैं साथ में. कल ही मिले थे. अच्छा, राइट. बहुत अच्छा कर, बहुत इतना अच्छा. जल्दी कोई चीज़ नहीं हो पाती है यहाँ पे, बिकॉज यू नीड टू गो थ्रू लुक टेस्ट एंड ऑल, बिकॉज ट्रस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू नेवर नो सेट पे आर्टिस्ट कैसा रहे, क्या रहे. सो बट शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल. शी इज़ वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 years, तो शी हैज़ डन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो शी इज़ लाइक एक्सपीरियंस्ड. He's the purest soul I've ever met. As I already said, that this entire team is like, I feel very calm on the set. That never generally happens on all the sets where there's always anxiety, but this team comes with like proper homework with them, so they know exactly what they are doing, from the artist to the choreographer to the director to the producer. Everyone is aware what we are doing. तो उससे क्या होता है ना, समय क्या नष्ट कम किया जाता है, उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है. जैसे हमने ऑलरेडी आज 6-7 सीन कर लिए हैं, और एक गाना भी करेंगे, तो आई थिंक ये बहुत फास्टेस्ट प्रोडक्शन है जिसमें
हम इतने सारे सीन एक दिन में कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू वर्क विद सच अमेजिंग कास्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच।